Assalamu alaikum. My name is Sadiqa Batul and I am a team member of Talk to Health. We are back with the last episode of Untold Empathetic Stories, and we have our guest named Maham today. So, first of all, Maham, over to you. आप अपना brief सा introduction दे दें पहले. Maham, and I'm currently enrolled in B Honors in a very known university, renowned university. And yeah, I have very much interest in psychology. That's why I'm here giving an interview related to this empathy. And yeah, that's it. Okay, so सबसे पहला सवाल मेरा, which I have also asked with the previous guest as well, that what do you think about empathy? How would you define it? I think about empathy is that कि empathy is something जिसको आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में हो, बहुत ज़्यादा हो. You need it very much. क्योंकि जब आप stressed होते हो, आपको anxiety होती है, या basically when you're depressed, you need someone who can, help you to cope with it. That's what empathy is for me. Okay. So. And yeah, please continue. In empathy and being empathetic, it's like कि आप किसी को, आप जैसे कोई stressed हो, तो आप उसको अपने आप उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखो कि वो कैसा फील कर रहा है. So it's very much important in our lives to be empathetic. So obviously we all have this exposure. मैं भी university में हूँ, आप भी हैं. There are a lot of people which we need, like diversified amount of people. So आपकी नज़र में कोई ऐसा experience in which you deal with a person by being empathetic with that person? ऐसा कोई experience? Yeah, it can be vice versa as well. That someone who talked to you was being empathetic to you and you remember that person. मेरे साथ ऐसे दोनों experiences हुए. मैं भी empathetic थी किसी के साथ, कोई मेरे साथ भी empathetic था. Basically, a few years ago, I was literally very much stressed. Okay. And I needed someone जो मुझे empathy दे, जो मेरे साथ empathetic बने. Okay. तो but उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था. Like मुझे जो चाहिए था, मुझे जैसी empathy चाहिए थी, मेरे पास वैसी नहीं आ रही थी. So basically वो नहीं हुआ. मैंने खुद ही उससे cope किया. I'm trying still कि मैं उससे cope करूँ, anxiety से cope करूँ, stress से. And whereas मैं जिसके लिए empathetic बनी, मैं बनी, बहुत ज़्यादा बनी. I like to help people and I like to work with them. I like to listen. मैं बहुत ज़्यादा, you can say I'm a listener. I'm a good listener. Okay. मैं बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं लोगों की बातें सुनती हूँ, उनको help करती हूँ और उनका stress remove करती हूँ. Basically I'm a problem solver. So yeah. Okay, so how did it change your personality? I mean, obviously, you needed someone at that time. It would have affected your personality at personal level as well. So, किस तरह change किया आपको? In both the cases. It did. Many years back, actually a few years back, I was like, if you have heard the Geet from Jab We Met, I was like, yeah, exactly. And after 2 or 3 years, मैं बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं मैं अपसेट हो गई. मतलब वो पर्सनैलिटी बिल्कुल ही काइंड ऑपोजिट हो गई. एंड देन उसकी ऑपोजिट होने के बाद मेरा दिल नहीं करता था कि मैं जो हूँ ना वो हंसूँ या कुछ भी एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग्स, क्योंकि मुझे लगता था नो वन वुड अंडरस्टैंड मी. नो वन वुड अंडरस्टैंड कि मैं कैसा फील कर रही हूँ. मैं जिसको भी अपनी बताती अपने बारे में, दे वुड बी लाइक नहीं, दैट्स नॉर्मल. सो या तो जैसे मैं पहले इतनी कोई हंसती खेलती थी, नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. बट अब आई एम ट्राइंग टू बी अगेन लाइक दैट कि मैं उस जैसे दोबारा हो जाऊँ, क्योंकि ये ऐसे अपसेट रहने में कुछ है नहीं ना. फिर जब कोई आपको एम्पैथी दे रहा है, मुझे अब एम्पैथी मिल रही है, तो इसलिए अब वापस होना वैसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी हंसते खेलते गुजारनी है. So do you think कि जैसे hard times हमारे पास आते हैं, it do changes us. So when we have to go back to our original personality, do you think कि वो एक difficult phase होता है? Like it's really difficult to be what you were before, right? Yeah, it is difficult. And basically जब आपके पास वो experience दोबारा किसी भी सूरत में जो है वो experience आपको दोबारा कोई नजर आ रहा हो, उसकी झलक आ रही हो, आप रोना स्टार्ट कर देते हो. Anxiety attacks आते हैं, panic attacks आते हैं. Exactly. Yeah. और जब आप दोबारा उस पर्सनैलिटी को आप दोबारा उसको जा रहे हो या आप अपने आप को दोबारा वैसे बना रहे हो, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है. इसमें आपको अपने फ्रेंड्स का साथ चाहिए होता है, अपने रिलेटिव्स का साथ चाहिए होता है कि आपको वैसा बनना है, आपको ऐसे नहीं रहना, आपको ये डिप्रेशन में नहीं रहना, आपको निकलना है.
तो इसलिए आई हैव चूजन साइकोलॉजी एज माय सब्जेक्ट बिकॉज मुझे लगा था जब मैंने ये साइकोलॉजी चूज की थी मैं ऐसी नहीं थी मुझे कोई जिसे कहते हैं स्ट्रेस कुछ नहीं था होता है अक्सर स्ट्रेस तो होता है बट नॉर्मल वे में था बट व्हेन आई चूज दिस साइकोलॉजी उसके कुछ दिन बाद मैं स्ट्रेस्ड हुई एंजाइटी अटैक्स आए पैनिक अटैक्स आए तो फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये सब चीज़ें भी होती हैं मुझे टर्म्स पता चली मुझे सब कुछ पता चला कि साइकोलॉजी है क्या फिर जब मैं आगे बढ़ती गई मैंने खुद ही कोशिश की मैं अपने आप को खुद ही हील करूँ खुद ही मैं इस चीज़ से कोप करूँ ताकि जो है सब सेट हो पाए मैंने किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं की बट फिर यही बात है ज़रूरी होता है कि आप किसी से अपनी बातें शेयर करो आपको एम्पैथी मिले कोई एम्पैथेटिक पर्सन मिले तो यार मिला मुझे एक एम्पैथेटिक पर्सन मिला इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस सो मतलब आपके इस पूरे एक्सपीरियंस में डिड इट मेक यू मोर एम्पैथेटिक लाइक डिड यू स्टार्ट फीलिंग पीपल मोर उनकी फीलिंग्स को देखना बिकॉज सिंस यू आर स्टडीइंग साइकोलॉजी एज वेल तो मैं यही होप करती हूँ कि जब आप किसी को देखती होगी डिप्रेशन में और इन एनी फॉर्म ऑफ मेंटल डिजीज you would definitely understand them more and after the experience तो more right बहुत ज़्यादा अब मैं एक वैसी क्यूरियस इंसान हूँ आई टोल्ड यू मैं गीत जैसी ना तो वैसे अब जब मुझे बात होती जा रही है तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आती है कि अब जब मैं कभी भी ये लव सुनती हूँ स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन कोई भी मैं सोचती हूँ मैं इसको हेल्प कर सकती हूँ मुझे बताओ मुझे क्या है ये मुझे बताओ ये क्या है मैं बता सकती हूँ ये क्या है मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी हेल्प करूँ मैं उसको उस इंसान की जो प्रॉब्लम है अपने आप को वहाँ रख के देखती हूँ फिर मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ और वो सॉल्व बहुत बचाती है अल्हम्दुलिल्लाह This is really great. And do you think कि like आजकल अगर हम society को देखें so there is lack of empathy like a lot of lack of empathy क्योंकि even अगर मैं अपना भी बताऊँ तो हम किसी भी जगह पे जाते हैं and if you see people के जो depressed है या even वो silent है people don't understand right और अगर हम उसको mention करें तो the very frequent response जो आता है वो ये आता है कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है so आप इसके बारे में क्या opinion रखती हो is it really lacking in our society? Yes, it is. ये इसकी बहुत ज़्यादा लैकिंग है हमारी सोसाइटी में और मैं खुद ये बताती हूँ क्योंकि मैंने अपनी बात किसी से शेयर करने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं सोचा नहीं कोई नहीं पहचान पाएगा इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग एक दूसरे को पहचानें एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें एम्पैथी दें एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझें उसकी प्रॉब्लम्स को कि हम सॉल्व कर सकते हैं उसका मजाक नहीं उड़ाएं So what do you think are the ways कि जिससे आप empathy show कर सकते हो कि जिससे अगले बंदे को ये फील ना हो कि आप उससे sympathize कर रहे हो उनको ये फील हो कि आप उन्हें consolation दे रहे हो उनके साथ हो as a companion what are the ways I think हाँ तो ये जब कोई इंसान प्रॉब्लम में हो स्ट्रेस और अपसेट उसको आप ये ना कहो कि it's alright ठीक हो जाएगा we know ठीक हो जाएगा अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह हमें उसको और ज्यादा लफ्जों से कहना चाहिए कि हाँ we know how you feel हम उसको फील कर सकते हैं और हमें गुड लिसनर बनना चाहिए उसकी पूरी बात सुननी चाहिए नहीं कि हम बीच में से बात काट के ये कहते हैं कि हाँ ठीक है ठीक हो जाएगा नहीं ऐसे मत सोचो अपसेट नहीं हो सबसे गंदा जो जुमला होता है ना वो मुझे ये लगता है कि वो अपसेट नहीं हो I mean it is an upsetting situation तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप अपसेट नहीं हो हाँ अपसेट नहीं हो सोचो नहीं दिमाग में सोच आती है ओवरथिंकिंग हर कोई करता है ओवरथिंकिंग आप जितनी भी नहीं करने की कोशिश करो मेरी नजर में इन माय पर्सपेक्टिव हर कोई ओवरथिंकिंग करेगा खास तौर पे अगर वो लाइक अकेला बैठा हो so you cannot avoid it it just comes चीजों से भी आता है आपके सराउंडिंग्स में जो चीजें होती हैं उससे रिलेटेड आपको ओवरथिंकिंग कराती हैं तो इससे आप जा नहीं सकते दूर नहीं हो सकते जब तक कि कोई आपको एम्पैथी ना दे जब तक आप खुद से ही कोशिश ना करो तो इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं कि किसी को हम बाय वर्ड्स ही ऐसे करें कि वो फील करे कि हम उसका दर्द समझ रहे हैं हम उसका स्ट्रेस समझ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं पूरी कि वो दूर हो ये नहीं कि बस हाँ खत्म तुम मत सोचो तुम उदास नहीं हो दैट्स इट नो इट्स नॉट लाइक दैट वी हैव टू बी इन देयर शूज एग्जैक्टली So अगर मैं ये बोलूँ कि like for example if we start promoting empathy like and हम उसको हर जगह कर दें so do you think कि इससे कोई बड़ा impact आ सकता है society level पे अगर हम इसको काफी common करें और वो कितनी intensity का हो सकता है change इसको अगर हम common करें तो इंसान depressed कम होगा stressed कम होगा क्योंकि उसे पता चलेगा कि उसके पास कोई है जिससे वो अपनी बात शेयर कर सकता है आधे लोग तो इस वजह से stressed हो जाते हैं शायद कि वो ये नहीं होता कि वो किसी से अपनी बात शेयर करे वो ये सोच के इंसान जो है वो और स्ट्रेस होता जाता है कि उसके पास कोई है नहीं जिससे वो अपनी बात शेयर करे वो किसी को कुछ कह नहीं सकता वो किसी को कुछ कहेगा तो वो गलत समझा जाएगा
इवन हमारे यहाँ ये है कि हम अगर साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट के पास जाएं तो लोग समझते हैं कि पागल है, बट नो, इट डजंट मीन दैट, पागल नहीं है वो। इनफैक्ट हमारे यहाँ साइकियाट्रिस्ट को समझे इस उसमें जाता है कि बस आप पागल हो इसलिए आप जाते हैं। पागल हो तो आप जा रहे हो, ऐसा नहीं है। लोगों को समझना चाहिए, हमें एम्पैथी देनी चाहिए, हमें एक एम्पैथेटिक पर्सन बनना चाहिए, उसके लिए सोचना चाहिए कि वो किस चीज से गुजर रहा है। ये नहीं कि हम उसको और जो है ना टोंट करें कि नहीं तुम ही गलत सोच रहे हो। और दूसरी बात कि जब यू आस्क मी कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, एम्पैथी को कैसे हम ला सकते हैं सोसाइटी में, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि उसको ये नहीं कहें कि तुम गलत हो। सबसे पहले तो हमें उसे ये कहना ही नहीं है, चाहे वो गलत हो भी, हमें उसकी बात सुननी है, हमें उसको ये एहसास आहिस्ता आहिस्ता दिलाना है। अगर उसने कुछ गलती की है कि यू डिड रॉन्ग, बट आहिस्ता प्यार से, ये नहीं कि बस हाँ तुम गलत हो, नहीं, आराम से उसको समझाना है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ भी नहीं रहे, अगर आपको काउंसलिंग करना नहीं भी आती, बट आप अपने लफ्जों से समझा तो सकते हो ना आराम से। बट कोई ऐसा समझता नहीं है, क्या करे। हमारे यहाँ समझने की मेन चीज है, इवन तो क्या और आप जो मेरा कॉमन नोशन है वो कि आप किसी को समझाने की कोशिश करो सो वो उल्टा आप पे बरसने लग जाते हैं। दैट डोंट टेल मी कि वो कहते हैं कि तुम इस सिचुएशन में नहीं रही तो तुम्हें नहीं पता। आई मीन sometimes you know आप lost of words हो जाते हो कि like I'm doing the right thing and that person is not accepting. Okay, so what is that one advice क्योंकि वीडियो हम लोग जो है वो डालते हैं publicly, so what is that one advice you would like to give to people regarding empathy? The advice I want to give to people is that try to listen people, try to listen them carefully, try to listen their stories, their experiences, whatever they are telling you, listen them, listen as वो आपके साथ भी हुआ चाहे नहीं हुआ, और अगर कुछ गलत है तो अल्लाह ना करे कुछ गलत हो आपके साथ, पर आप सुनो उस बात को। और जब आपके पास सोल्यूशन निकले, ऑब्वियसली निकलेगा, आपके दिमाग में कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा, जैसा भी हो आप उसको सोल्यूशन दो, आराम से दो, ताकि वो सुने। ये नहीं कि आप पीछे हट जाओ कि आपको कोई सोल्यूशन नहीं आता, हम सुन भी नहीं रहे, नहीं, आप उसे सुनो, आराम से उससे बातें करो, उसका दिल हल्का करो, क्योंकि जब आप किसी से बातें करते हो आपका दिल हल्का होता है, जब वो पर्सन आपको अपना मानता है वो हील होता है। Okay, now one of last question which I want to ask कि जैसे बहुत सारे लोग different personalities रखते हैं, right? Some want to share, some don't want to share. तो अगर उस type of personality आए in which a person is complex, it's hard for him to share, तो हम किस तरह उससे deal कर सकते हैं in an empathy? हम किस तरह उसको डील कर सकते हैं? हम उसको इस तरह डील कर सकते हैं कि वो पर्सन किसी ना किसी से तो क्लोज हो गई, आई थिंक हम इसको बेसिकली कह सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट है, ठीक है। तो अगर हम ज़्यादा लोगों से नहीं कर सकते, उसकी केयर नहीं कर सकते, उससे बात नहीं कर सकते, बेसिकली देयर वुड बी अ सम वे, किसी तरह, चाहे साइकोलॉजिस्ट से, आई थिंक एवरीबडी उससे कर सकते, साइकोलॉजिस्ट थर्ड पर्सन, तो हम उससे शेयर कर सकते हैं, हम उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जा सकते हैं। बट स्टिल अगर वो ऐसा फील नहीं करे कि साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, तो अब उसका कोई ऐसा दोस्त हो, एक दोस्त हो जो इंट्रोवर्ट होगा ना, वो अपनी चीज बताएगा, उसकी पर्सनालिटी से खुद ही देखेगा कि उसको क्या चीज फर्क पड़ता है, जिससे किस इंसान से उसे फर्क पड़ता है, किसकी बातों से फर्क पड़ता है। तो जो कोई भी उससे क्लोज हो वो उससे बात करे, अगर वो भी उससे बात नहीं करे तो हम अपने हरकतों के जरिए उसकी जो है उसको करवा सकते हैं कि वो ठीक हो जाए, उसका स्ट्रेस दूर करा सकते हैं, थेरेपीज होती है उससे हम दूर करवा सकते हैं। इंटरनेट से बहुत कुछ हो सकता है, अगर वो किसी से मिलना ही पसंद नहीं करे, इंटरनेट से बहुत कुछ हो सकता है। Okay, so that's it for the session, and it was a really interactive session. I really loved your views and your thought, the way you talked about everything. This will be from my side, and I hope that you guys who will be watching this video will like it and will try to promote empathy more in this society, ताकि हम और लोगों को understand कर सकें and make sure कर सकें कि हम उनके shoes में रह के उनकी different problems को solve करें and be with them. So that's it for this session. Thank you. Thank you. Thank you. It was a nice interview.